ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ میں جانی تفصیلات سے پہلے ایک اہم خبر، انتہائی افسوسناک خبر۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، شہر اقتدار کے سب سے بڑے ہسپتال میں انسانیت سوز واقعہ۔ اسلام آباد میں حکمران سیاست کے لیے مشغول ہیں، جبکہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ پیمز میں علاج کے لیے آنے والی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب معذور لڑکی سے میل نرس کرشن کمار کی زیادتی۔ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا، متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حکام سے انصاف کی التجا۔ ایک اور واقعہ، ایک اور کمیٹی، 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ کہیں یہ کمیٹی بھی دیگر واقعات کی کمیٹیوں کی نظر نہ ہو جائے، لواحقین کی دہائی۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والی بے بس ہوا کی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پیمز کے ECU میں معذور لڑکی زیر علاج ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب میل نرس کرشن کمار لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاندان کے لیے یہ خبر بم بن کر گری اور وہ انصاف کے لیے دہائیاں دیتے رہے۔ پیمز انتظامیہ پہلے واقعے پر تذبذب کا شکار رہی، تاہم میڈیا پر رپورٹ ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور تھانہ مرگلا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وائس چانسلر پیمز نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کو واقعے سے متعلق شواہد فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ہسپتال انتظامیہ اپنے طور پر بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ نہ کہ اس کی فوری طور پہ کرمنل انویسٹیگیشن ہو، بلکہ فوری طور پہ اس کو اریسٹ کیا جائے۔ ابھی ٹیم روانہ ہو گئی ہے، وہ شنگریال میں پنڈی کا کوئی رہنے والا ہے، تو وہاں پہ ہماری اپنے سٹاف بھی ساتھ گیا ہے، ہماری نرسنگ کی ہیڈ بھی گئے ہیں اور پولیس پارٹی بھی گئی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج چند گھنٹوں میں وہ اریسٹ ہو جائے گا اور پھر یہ انویسٹیگیشن آگے چل سکے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ پیمز سربراہ کی زیر نگرانی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ناظرین، شہر اقتدار کے سب سے بڑے اسپتال میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ اسلام آباد میں حکمران سیاست کھیلنے میں مشغول ہیں، جبکہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ پیمز میں علاج کے لیے آنے والی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب معذور لڑکی سے میل نرس کرشن کمار کی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا، متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب انہیں اس واقعے کا علم ہوا ہے۔ حکام سے انصاف کی التجا کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، سماجی کارکن طاہرہ عبداللہ اس پہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا، یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، پیمز ہسپتال اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال، یہاں پر اس طرح کا انسانیت سوز واقعہ، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد اس بات کی پیش کرتی ہوں کہ آپ لڑکی کا نام نہیں لے رہے اور یہ کہ ریپسٹ کا نام لے رہے ہیں، لیکن برائے کرم زیادتی کا لفظ مت استعمال کریں۔ ریپ ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے، زیادتی ریپ نہیں ہوتی اور ریپ زیادتی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو برائے مہربانی ریپ کہیں۔ اور اب تیسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دارالخلافہ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پیمز میں دن دہاڑے ICU کے اندر لڑکیاں ریپ ہونے لگیں گی، اور وہ بھی پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹیز، ایک خصوصی افراد میں سے ایک لڑکی، اس سے زیادہ شدید مذمت میں نہیں کر سکتی۔ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال میں اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ لوگ ہسپتال علاج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب انہیں مرہم کی جگہ مزید زخم ملے تو کیا مسیحاؤں سے اعتماد نہیں اٹھ جائے گا؟ نہیں جی، آپ روکیں، آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ فلمی ڈائیلاگ بول رہے ہیں۔ اخلاقیات کا جنازہ نہیں اٹھ رہا، زمین نہ پھٹی نہ آسمان پھٹا، یہ جو آپ کی پلیز یہ ہٹائیں، یہ یہاں سے یہ لال رنگ کی تختیاں ہٹائیں، یہ بریکنگ نیوز اس طرح ہٹائیں، یہ مت کریں۔ یہ ایک سیدھا سادہ جرم ہے، اخلاقیات کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایک جرم سرزدہ ہوا ہے، اس بندے کو فوراً اریسٹ کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب کہ اپنے امپلائی کو انہوں نے معطل کر دیا؟ معطل سسپینشن کو کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس
गिरफ्तार किया जाए, FIR काटी जाए, मुतल्लिका शिकों के तहत उसका अदालत में केस चले। ये ना अखलाकियात का जनाजा निकला, ना जमीन फटी, ना आसमान फटा। ये हम फिल्मी डायलॉग से निकलना चाहते हैं, बिलखसूस न्यूज बुलेटिन के अंदर। हल क्या है इस मामले का? इसका हल ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अस्पताल की इंतजामिया कौन होती है कि उसको मुअत्तल कर दे? पुलिस कहाँ है? क्यों नहीं अभी तक वो अरेस्ट हुआ? ये बंदा जो भी है, इसको अरेस्ट होना चाहिए था। और हमारे मुल्क के और भी हेल्थ मिनिस्ट्री के, ये जो वजारत सेहत है, इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और ज़ाब्ता इखलाक हैं कि खवातीन मरीजों को खवातीन नर्सें देखेंगी। ये मेल नर्स एक खातून मरीजा को क्यों देख रहा था, क्यों उसकी देखभाल कर रहा था? और अगर ये घुस आया तो बाकी फीमेल नर्सेज कहाँ थी? इसकी तो बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इंटरनल अस्पताल की इंतजामिया इंक्वायरी ना करे, मेरा मुतालबा है। अगर ओवरऑल सोसाइटी की बात की जाए तो हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है? कोई पहला वाकया नहीं, इस तरह के वाकयात होते हैं। ठीक है, मुल्जिमान को करार वाकई सजा आपने हल पेश किया, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो ये रवैया है, इसको पिनअपने से कैसे रोका जाए? जी, ये पनप नहीं रहा, ये वैसे का वैसा ही है। अब मीडिया क्योंकि बढ़ गया है पाकिस्तान में, लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, थोड़े से, जितना उनको होना चाहिए उतने नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी शरह खानगी बढ़ी है, लिहाजा आगही और शऊर और बेदारी इन मामलात पर बढ़ गया है। ये मामला आज से नहीं है कि पाकिस्तान में रेप हो रहे हैं, लेकिन कानून मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल, और मैं बार बार दोहराऊंगी, आप तंग आ जाएंगे सुन सुनकर, कानून की हुक्मरानी किधर है? जी, क्यों नहीं कानून की हुक्मरानी चलती? ये हॉस्पिटल की इंतजामिया कौन होती है? मैं कहती हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए कि उन्होंने एक रेपिस्ट को मुअत्तल कर दिया, बजाय इसके कि हथकड़ियां पहनाकर पुलिस उसको आके ले जाती थाने और उसके बाद जेल जाता वो, और उसका केस चलता, ट्रायल चलता अदालत के अंदर। बहुत शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल्ला समाजी कारकुन टेलीफोन पर मौजूद थी, इस हवाले से बात कर रही थी। आपको बताते चलें, शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में इंसानियत सोज आज वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद में हुक्मरान सियासत खेलने में मशगूल हैं, जबकि अखलाकियात का जनासा निकल गया है। पिम्स में इलाज के लिए आने वाली माजूर लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब माजूर लड़की से मेल नर्स कृष्ण कुमार ने ज्यादती की है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया गया है और तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि मुल्जिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी और उनकी जानिब से इंसाफ की अपील भी की गई है। एक और वाकया, एक और कमेटी कायम, 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कहीं ये कमेटी भी दीगर वाकयात की कमेटियों की नजर ना हो जाए, लवाहिकीन की जानिब से ये दुहाई दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, समाजी कारकुन फरजाना पारी टेलीफोन पर मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से हम हकीकुल इबाद की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों इखलाकी तौर पर इतना गिर गए? इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया और पहला वाक़या नहीं है ये, इससे पहले भी इस तरह के बेशतर वाक़यात सामने आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएं? देखिए, रोकथाम ही तो नहीं हो रही ना, जो इक़दाम होने चाहिए वो इक़दाम ही तो नहीं हो रहे। मतलब कंप्लीटली मैं समझती हूँ कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो सिस्टम है, वो बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुका है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे कोई गरीब लोग होते हैं या औरतें होती हैं या पसमानदा तबकात के लोगों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वहाँ तो आप समझे कि सजा देने का सवाल ही नहीं उठता। और ये वाकया तो मैं कहती हूँ इतना दिल हिला देने वाला है। मतलब आप खुद सोचें कि मतलब आप कोई ICU में लोग अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहे होते हैं और वो भी एक डिसेबल औरत के साथ। मतलब ये तो पूरा आप देखें, जो बिल्कुल इससे ये है कि हमारा पूरा जो माशरा है वो बिल्कुल एक बीमार ज़हनियत पनप रही है। और ज़ाहिर है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर बेइंसाफियाँ होती हैं, समाजी नाहमवारियाँ होती हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं होता और लोगों को जराइम की सजाएं नहीं मिलती है और अमीर के हाथ में कानून होता है और वो सबको सिस्टम को खरीद सकता है, तो वहाँ पे फिर ये मुजरमाना, हर तरह की जो मुजरमाना ज़हनियत है वो तेजी के साथ बढ़ती है। ये बताइएगा, माशरे में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद में इजाफा कर रहे हैं?
देखिए, एक तो सबसे पहली बात यही है कि जाहिर है कि जब आप जुर्म करते हैं और आपको सजाएं नहीं मिलती है तो उससे लोगों को ये एक उनकी हौसला अफजाई होती है, जब उनको ये लगता है कि हम जुर्म करेंगे और हम जो है इससे बच निकलेंगे। दूसरा, जाहिर है कि ये अगर आपने माशरे के अंदर तालीम नहीं दी, आपने कोई वैल्यू सिस्टम नहीं दिया, लोगों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वो समझें कि जो एहसास महरूमियाँ है उसकी नेगेटिविटी जो है वो इस तरह से होती है कि जिन माशरों के अंदर जो सिटीजन है वो जितना डिसएम्पावर्ड होगा फिर वो उतना ही जानवर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान बनने के लिए उसकी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जब वो कंडीशंस नहीं होती तो फिर इंसान जानवर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसको वो एक एलिनेशन होती है जो उसको फिर उस तरफ ले जाती है। तो वो जो मैं पहले बात कर रही थी कि ये उसका नतीजा है कि बिल्कुल समाज के अंदर जो है जो एक बीमार ज़हनियत जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है और उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसमें सबसे बड़ी मैं तो जिम्मेदारी जो है वो रियासत पे आयद करूंगी और हमारी जो हुकूमतें वो इस सिलसिले में क्या कर रही हैं, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कर रहा है इसके लोगों को सजाएं देने में, ऐसी ज़हनियत को रोकने में हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा वो निज़ाम क्या रोल प्ले कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हर तरह से नाकाम है। फरजाना बारी, वक्त न्यूज़ से आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। पिम्स में ज्यादती के वाकये को 2 रोज गुजर गए हैं। वजीर आजम की हिदायत पर तारिक फजल चौधरी पिम्स पहुंच गए। वाकये की तहकीकात कहां तक पहुंची है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, बताइएगा, वजीर आजम की जानिब से नोटिस भी ले लिया गया है लेकिन मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर से हवा की बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आज यहाँ पर एक वाक़या पेश आया पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद, ना सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर हवा की बेटी को एक दफ़ा फिर से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सवात की रहशी नजमा जिसकी उम्र 20 साल है, गुज़श्ता 2 माह से यहाँ पर ज़ेर इलाज है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ज़्यादती की, ये कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल का मेल नर्स था जिसने उसके साथ ज्यादती का निशाना उसको बनाया और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया। जो नजमा के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि 2 दिन कबल, क्योंकि हफ्ते की और इतवार की दरमियानी शब्द उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनसी तशद्दुद का। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर फजले हक हैं जिनको बाकायदा दरख्वास्त दी, लेकिन तब अस्पताल इंतज़ामिया जो तजब्जुब का शिकार थी और 2 दिन वो दरख्वास्त जो है छुपाई गई यहाँ पर ताकि मीडिया पर यह खबर ना आए। लेकिन आज मीडिया पर खबर आने के बाद जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो हरकत में आ चुकी है, जबकि जो मुलजिम था वो यहाँ से भागने में फरार हो चुका है। अब क्योंकि आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, उनकी ख़ुसूसी हिदायत पर तारिक फजल चौधरी यहाँ पर आ चुके हैं और जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद, उनसे इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है ताकि तमाम तार जो तफसीलात हैं उनसे उनको आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ये हदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर करार वाकई सजा उसको दी जाए। लेकिन अफसोसनाक अमल यह है कि 2 दिन गुजरने के बावजूद FIR ना दर्ज की जा सकी। आज जब मामला मीडिया पर FIR दर्ज नहीं की जा सकी। मोहम्मद अवैस, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट